Number 28. If margin of safety is 2,40,000, which is 40% of sales, and PV ratio is 30%. PV ratio is 30% of AB Limited. Calculate its break-even sales and amount of profit on sales of rupees 9 lakh. Yeah, margin of safety is 2,40,000. This is 40% of the sales, and PV ratio 30%. So what is the break-even sales and profit on sales of rupees 9 lakh? अब देखिए margin of safety 2,40,000. This represents 40% of the sales. इसका मतलब what is the total sales? It is 6 lakh. So total sales is equal to 2,40,000 divided by 40% is rupees 6 lakh. Therefore, break-even point sales, it is 6 lakh का 60%, 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना, तो 60% ब्रेक इवन सेल, या फिर आप ऐसा बोल दो 6 लाख माइनस 2,40,000, 3,60,000. फाइंड आउट क्या करना है हमको? ये तो ब्रेक इवन सेल्स हो गया. एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 9 लाख. सो हियर इज आवर नंबर 1. नंबर 2, प्रॉफिट फॉर, अच्छा एक मिनट, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल है आपका 3,60,000. नाउ एट ब्रेक इवन पॉइंट whatever the contribution is equal to fixed cost. Therefore, fixed cost is 3,60,000 into 30%. PV ratio is given to you 1,08,000. Now, number 2, profit on sales rupees 9 lakh. So write down contribution is equal to 9 lakh into 30%, 2,70,000 less fixed cost. कितना है? 1,08,000. Therefore profit. $1,62,000 is the profit. Is it? So very simple. Next, number 29. Number 29. X Limited has earned a contribution of rupees 2 lakh and a net profit of rupees 1,50,000 on sales of rupees 8 lakh. What is the margin of safety? It is rupees 6 lakh. Is it? देखिए ना क्या है वहां पर कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए, that includes profit 1,50,000, sales of rupees 8 lakh. इसका मतलब PV ratio it's 2 lakh by 8 lakh, contribution upon sales, so it is a 25%. 25% is your contribution, and your profit is 1,50,000. So margin of safety is nothing but profit upon PV ratio. So 1,50,000 by 25% is 6 lakh. आप लिख दो इसे.
What? Next number 30. The ratio of variable cost to sales is 70%. Ratio of variable cost to sales is 70%. इसका मतलब PV ratio is 30%. आगे, the break even point occurs at 60% of the capacity sale. टोटल जो हमारी कैपेसिटी है उसका 60% पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है. Find the capacity. Capacity sales when fixed cost rupees 90,000. Also compute profit at 75% of capacity sales. Break even point is at 60% of capacity sales. अच्छा, very first, say that your variable cost to sales is 70%. So very first write down PV ratio. आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपके सेल्स के 70% है, इसी का मतलब आपका पीवी रेशियो 30%. पीवी रेशियो 30%. नेक्स्ट लाइन, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? उनका परसेंटेज छोड़ दीजिए आप. ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट आपको दी है ना, सो प्लीज राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. So 90,000 divided by 30%. I think it comes to 3 lakh. 3 lakh. हाँ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहली लाइन क्या दी थी आपको, द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स. इसका मतलब हमारा टोटल सेल्स कितना है? 60% हमारा ब्रेक इवन सेल्स है. सो राइट डाउन, since break even sales is 60%, since break even sales is 60%, next line, capacity sales equal to 3 lakh divided by 60%. कितना? 5 lakh. अब आपसे पूछा है also compute the profit at 75% of the capacity sales. So write down profit at 75% capacity sales. $13,500. नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, लिखो. Write down sales at 75% capacity. Sales at 75% capacity. कितना? 5 लाख का 75%, 3,75,000. 3,75,000. Therefore contribution वो कितना आएगा आपका? 3,75,000 का 30%, 1,12,500. 1,12,500 less fixed cost. कितना? 90,000. Therefore profit 22,500. Profit is 22,500. देखो इसको सॉल्व करने का और एक तरीका बता दूं मैं आपको, सिंपल तरीका.
आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट एट 75% ऑफ द सेल्स। देखिए 75% के लेवल पर आपका सेल्स जो है वो 3,75,000। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 60% का सेल्स तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स ही है। मतलब 75 में से 60 तो हमारा ब्रेक इवन सेल ही है। मतलब जो 15% सेल है ना, उस 15% सेल का जो पीवी रेशियो आएगा वही हमारा प्रॉफिट है। समझेगा आप? तो एक काम करो, 5 लाख का 15%, 70% का 30%, 22,500। दिस इज व्हाट द आंसर। गेट है आपको? नेक्स्ट नंबर 31, और ये तो एग्जाम वाला है, ये तो करना ही पड़ेगा सर आपको। नहीं नहीं, ब्रेक का तो सवाल नहीं आता। जब तक मैं 40 कंप्लीट ना कर लूं तब तक खाना नहीं मिलेगा। आज नंबर 31, आज तो कंप्लीट करना है पूरा, कुछ नहीं। मैंने नंबर 40 तक करना ही करना है। चलो नंबर 31, देखो अच्छे बच्चे जीत नहीं करते। आप अच्छे नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। नंबर 31, देखो एग्जाम का आया हुआ प्रॉब्लम है नवंबर 15, 5 मार्क्स। देखो कैसे फालतू फालतू प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। A company gives the following information: margin of safety 3,75,000, total cost 3,87,500, margin of safety 15,000 units, break even sales in units 5,000. You are required to calculate selling price per unit, profit volume ratio, break even sales and fixed cost. क्या क्या दिया आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया है 3,75,000, सभी मिलाकर टोटल कॉस्ट आपकी 3,87,500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15,000 यूनिट्स। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स आपको दिया हुआ है 3,75,000 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की क्वांटिटी दी है 15,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो राइट डाउन नंबर 1, selling price per unit. Number 1, selling price per unit. Next line equal to margin of safety sales, margin of safety sales divided by margin of safety quantity, margin of safety sales divided by margin of safety quantity. So it is 3,75,000 divided by 15,000 units. 3,75,000 divided by 15,000 units is equal to rupees 25. 25. Then देखिए हमारी टोटल कॉस्ट है 3,87,500 और ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटीज 5,000। इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? सॉरी, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है? हमारी टोटल क्वांटिटी है 20,000। बताइए आगे कैसे करेंगे आप? apply yourself. देखिए मैंने तो बताना ही है आपको फाइनली, बट प्लीज ट्राई ऑन योर ओन।
बताओ कैसे करेंगे? हाँ जय, प्रॉफिट इज 1,12,500. सो पर ठीक है, चलो 1,12,500 इज योर प्रॉफिट. तो अच्छा, वो प्रॉफिट कैसा आया तुम्हारा? 20,000 सेल्स क्वांटिटी है, क्योंकि 15,000 आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी, सॉरी एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी 15,000 और 5,000 आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी है. सो कुल मिलाकर 20,000 क्वांटिटी का सेल है. सो 20,000 इंटू 25, योर सेल्स इज 5 लाख माइनस टोटल कॉस्ट इज 3,87,500. योर प्रॉफिट इज 1,12,500. सो एटलीस्ट इतना लिख के रखो फिर. सेल्स 20,000 into 25, sales 20,000 into 25, less total cost. $3,87,500. Therefore, profit 1,12,500. बस चलो यहां से आगे सोचो. अब आपको समझ में आएगा कुछ? बोलो. पीवी रेशियो 30%. कैसे? हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन टू यू विच इज रुपीज 3,75,000. बिल्कुल सही. आगे उसका क्या करेंगे? प्रॉफिट इज 1,12,500. वो तो आ गया ना. हाँ, पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. करते आएगा, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है 1,12,500, वो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट है. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो प्रॉफिट होता है दैट इज नथिंग बट योर कंट्रीब्यूशन. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका कंट्रीब्यूशन ही है. और प्रॉफिट आपका जो 1,12,500 है, ये प्रॉफिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही प्रॉफिट है. So you can write down PV ratio is equal to profit upon MOS. So absolutely correct. It is 1,12,500 divided by 3,75,000 into 100. कितना आया? 30% is your PV ratio. So what is your break even sales? 1,25,000, क्योंकि टोटल सेल 5 लाख है. So write down break even sales equal to total sales minus MOS. Total sales minus MOS. वर्चुअल वाले भी लिखेंगे सभी जन. क्लास में गड़बड़ नहीं करनी. देखो एक्चुअल में करते हैं कि कोई गड़बड़ कभी नहीं. एकदम शांत बच्चे, अच्छे बच्चे. ठीक है, बिल्कुल वर्चुअल जैसे. वो भी कितने शांत है. देखो भूख लगी है सर. ठीक है. सो इट इज योर 5 लाख माइनस 3,75,000, 1,25,000. ये हो गया हमारा बीपी सेल. और बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी फिर?
कितनी? 37,500. दैट इज एट ब्रेक इवन पॉइंट. जो आपका सेल्स है, बीपी सेल्स पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वही आपकी फिक्स कॉस्ट होती है. सो आपको बीपी सेल का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना. सो राइट डाउन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू बीपी सेल्स इनटू पीवी रेशियो. बीपी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, that will give the fixed cost. So BP sales is 1,25,000 into PV ratio. PV ratio कितना था? 30%. So 1,25,000 into 30%. 37,500. Is it?